So first of all, what is computer? So it is a common operating machine particularly used for technical education and research. ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू कैन से दैट कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज फॉर अ कॉमन ऑपरेशंस particularly used for education, science and researches. ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर इज एन मशीन. ठीक है, वैसे तो बहुत सारी मशीन होती है, ऑल मशीन्स ऑफ विच रिड्यूस आवर वर्क एफर्ट, दैट दोज आर मशीन्स. बट कंप्यूटर helps a lot. Now we are nowadays we are depend upon the computer, lot of depend upon, not completely but depend upon the computer. So first of all you will see how it work. So it will work on IPO. ठीक है, one name is IPO. ठीक है, IPO means input, process and output. Okay, input is the raw information entered into a computer from the input device. ठीक है, it is the collection of letters, numbers, images. ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटा. ठीक है, यू कैन से दैट डेटा. व्हेन यू विल डू एनी क्वेरी विद द कंप्यूटर, देन यू विल रिजल्ट गेट अ इंफॉर्मेशन. यू कैन से इट इज अ रिजल्ट. ठीक है, और यू कैन से दैट इज अ आउटपुट. कंप्यूटर वर्क्स ऑन प्रोसेस इन द प्रोसेसिंग डिवाइसेस, that is called like CPU. Process is the operation of data as per the given instructions. It is totally internal process of a computer system. इसमें कौन कौन होता है, जैसे CPU हो गया, RAM, ROM. These devices will work on processing. ठीक है, so it is an internal process and it will give the result as per your requirement. Okay, as per you will input the information and data and then it will give the result. If you will search about output, output is the processed data, means the information you can say give by computer after data processing. Output is also called a result. ठीक है, or you can say the information also, that is also information. ठीक है, suppose that when you will google something, then at that time Google have a lot of data, that is a raw collection of a data. But when you will input like what is the meaning of a cow, then it will give you the result of cow, about cow. Okay, meaning, details, what type of looking, images. So that is what the result, whatever you will feel that is appropriate, then you can see that is a information. ठीक है, और result we can save these result in the storage devices. अब जो result हमको मिलता है वो हम storage device में save करना चाहें, it's up to us कि हम save करना चाहते हैं or not. It's up to you. You want to save information or not. The computer, तो अब हम बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, थोड़ी सी स्क्रीन को शॉर्ट करते हैं तो अच्छे से दिखेगा. ठीक है, नाउ सी द कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन किसका है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का. Then both hardware and software together make the computer system function. ठीक है, अब दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलके हमारे कंप्यूटर को फंक्शनल बनाते हैं. ठीक है, it will function, it works as a machine. Every task given computer that I have already told you, IPO cycle. ठीक है, means input, process, output, साइकिल. जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे बताना, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आई होप इट विल नॉट इज बेसिक फॉर यू.
ठीक है। सेंट्रल सीपीयू, तो हमारे पास ये सीपीयू है, ठीक है, दिस इज द सीपीयू सेक्शन। सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस। सीपीयू जो है वो 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड होता है। वन इज सीयू, वन इज सेकेंड इज ALU एंड थर्ड इज MU, मीन्स कंट्रोल यूनिट। Second one is arithmetic or logical unit, and MU is a memory unit. Okay, this whole part will work when you will input something. When you will input something, it will process and then gives the output. It depends upon you that you want to save this in memory unit or storage unit or not. Okay, so these 3 functions CPU will handle and work. Okay, so this is the functional process of a computer. Now let's learn about CPU. Now it is CPU is a brain of a computer system. You can say, you know that about it. It controls, guides, directs to all the connected devices. It divided into 2 major parts. ठीक है, हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है, इन मेमोरी यूनिट CU, ALU एंड MU, बट इंटरनल पार्ट 2 ही होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, नॉट अ इंटरनल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स टू ऑल द डिवाइसेस, गाइड्स टू फ्लो डेटा एंड इंफॉर्मेशन. जब जितनी भी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो सब कंट्रोल करता है, ठीक है, और वो वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिपेंड अपॉन OS, ठीक है। OS इंस्ट्रक्ट के थ्रू हम एप्लीकेशंस के थ्रू हम OS को इंस्ट्रक्शन देते हैं, OS हमको हमारे हार्डवेयर को वर्क कराता है. हार्डवेयर कौन है? CPU. जितने भी जो भी डिवाइसेस हमारे डिवाइस पेरिफेरल्स हैं हमारे कनेक्टेड हैं, दैट इज़ अ हार्डवेयर, ठीक है. तो दिस यूनिट परफॉर्म्स, अब क्या है कि CPU हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. और ALU क्या काम करता है? द यूनिट्स परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू. बोथ यूनिट डिजाइन इन द सिंगल सर्किट, ठीक है. ये दोनों सिंगल सर्किट में डिवाइड है. इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है. जिसे आप देखते होगे कि i7 है, i6 है, इसे ये प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है. अब मेमोरी रजिस्टर्स भी बोलते हैं थर्ड पार्ट को. रजिस्टर्स इज अ टेम्परेरी यूनिट और मेमोरी इन द CPU, ठीक है. CPU में होता है. दीज रिसीव्स डेटा इन्फॉर्मेशन एंड देन डेटा इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन देम एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है. थोड़ी देर के लिए हम जब प्रोसेस करते हैं डेटा, ठीक है. सपोज हमने पूछा कंप्यूटर से 4x4, ठीक है. तो 4x4 दिस विल स्टोर फॉर लिटिल बिट टाइम, देन व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट लाइक 16, ठीक है. तो at that time you will give, it will display on the output devices, ठीक है. मीन्स मॉनिटर को और क्या बोलते हैं? VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है. VDU, ठीक है. अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इज अ पेरिफेरल. उसका पासवर्ड क्या है? हम नहीं देख रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं. 1648. An input unit fetches the input, converts it into binary form, ठीक है, विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ठीक है. अब जो भी हम इनपुट करते हैं इज अ पेरिफेरल. जो भी हम इंटर डेटा पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू करते हैं, लाइक क्या होते हैं? 1648 ही है. नहीं तो उससे तो नहीं लग रहा. So an input unit fetches the input and converts it into the binary form. Binary form क्या होती है? That is a machine language.
ठीक है। एक मिनट, 1689 ना सी। तो मशीन, ठीक है। तो हमारे पास जैसे डिवाइसेस क्या कौन सी होती हैं, ये डिवाइसेस हमारे पास लाइक कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बायोमेट्रिक, MIC, ठीक है, MICR, OCR, OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, इसे बोलते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है। स्मार्ट रीडर, कैमरा, ये माइक है, MIC नहीं, माइक है, ठीक है। एंड देन ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं, आई थिंक आपको सभी ने पढ़ा होगा, आपने सभी कुछ तो देखी होंगी। एक जॉयस्टिक, लाइट पेन, अब ऐसा नहीं आता, अब तो वायरलेस भी आने लगा है, ठीक है। टच स्क्रीन देखिए सभी ने। बायोमेट्रिक सेंसर सभी ने देखा होगा, आधार कार्ड लिंक करने जाते हैं तब। सर इसमें से कुछ भी वैसा नहीं आता है एक्चुअली, ठीक है। ट्रैक बॉल, ग्राफिक, स्कैनर, बार कोड रीडर, ठीक है। तो इस तरीके के जो ये डिवाइसेस हैं हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। अब भी यूज़ करते हैं, बट इट्स अ मॉडर्न वर्जन फॉर स्कैनर। तो अब लगभग यूज़ ख़त्म ही हो गया, अब लोग इसको फ़ोन से ही स्कैन करते हैं, स्कैनर से अच्छा स्कैन होता है, ठीक है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज़ एज अ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो हम लोग कैसे इनका यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये इनके नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे OMR, अगर हम टच स्क्रीन के तो ATM पे जाओगे, अगर सारी मशीन्स टच स्क्रीन ही होती हैं, ठीक है। जॉयस्टिक, अगर आपने PS2 वगैरह देखा हो, गेम वगैरह शायद उसमें आता है PS2 के साथ। स्कैनर भी अब कई तरीके, हैंडहेल्ड स्कैनर आते हैं, हाथ से स्कैन करने वाले आते हैं, अब तो बहुत चाइनीज़ आते हैं, छोटे छोटे आने लगे हैं, बहुत स्मॉल, ठीक है। ड्रम स्कैनर भी आता है, ठीक है, लेकिन अब इनका यूज़ बहुत कम हो गया। हाँ, बड़े मैप्स वगैरह के लिए स्कैनर का ही यूज़ होता है, फ्लैट बेड वगैरह, ठीक है। तो उनमें इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे आपने अटेंडेंस वगैरह मार्क करनी होती है, स्टाफ वगैरह की होती है, तो आपने स्कूल में भी लगा देखा होगा, और भी बहुत सारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए देखा होगा, ठीक है। और वैसे वो भी देखा होगा जहाँ पे आप सिम वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आधार कार्ड के थ्रू लिंक कराना पड़ता है। नाउ कम ऑन output devices. Output devices produces output result in human understandable form, like when you will see the output, तो मॉनिटर पे देखते हो, ठीक है, that is a soft copy when you will see on the monitor, ठीक है। CRT, LCD, TFT, CRT तो अब ख़त्म हो गए, ठीक है, नहीं यूज़ होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ ओल्ड टेलीविज़न, और इन्हें हम कैथोड रे ट्यूब बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। तो LED लाइट इमिटिंग डायोड, अब तो LED आ गई हैं, LED यूज़ होती हैं आज के टाइम में, LCD भी बंद हो गई हैं लगभग, ठीक है। तो ये हमें सॉफ्ट कॉपी देते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब वैल्यू विथ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच यू कैन सी ओनली, ठीक है। देन प्रिंटर हमको कौन से देते हैं, हार्ड कॉपी देते हैं, ठीक है। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर भी हमको सॉफ्ट कॉपी ही देता है, बट इट्स अ म्यूज़िक, ठीक है, वॉइस लिसनिंग के लिए, और इसका हार्ड कॉपी निकल नहीं सकता अगर आप लिरिक्स निकालते हो देन, ठीक है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर ही होता है, ठीक है, जो मैप वगैरह के बेसिकली यूज़ प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। दे विल वर्क
they will get the output from whatever the you will input after processing, then you will get the output. ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो. हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ आज तुम्हारा, भी थोड़ी देर में बात करें. क्या करो? क्लास ले रहा हूँ, क्लास. ठीक है. ठीक है. नाउ अब मेमोरी की बात करते हैं. मेमोरी अटैच टू द CPU, जो CPU से अटैच होती हैं, बेसिकली हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन कहते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी जो होती है उन्हें हम लोग टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. ठीक है. अब इनमें कौन कौन आते हैं? प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम एंड रोम. ठीक है, इनके बारे में बताएंगे अभी. और सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क, CD, PD मतलब पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD. ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है. सेकेंडरी मेमोरी मतलब विच विल स्टोर डेटा परमानेंटली और यू कैन टेक अ डेटा एंड ट्रेवल फॉर एनीवेयर. ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें, विल टॉक अबाउट रैम एंड रोम, देन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स आपने सुना होगा कि when you will work, system will on, at that time RAM will work. ठीक है. रोम भी काम करती है, ऐसा नहीं है. रोम will read whatever in the memory. ठीक है, you can say, and RAM will work when it depends at the time of executing the software. ठीक है, जब आप एग्जीक्यूट करते हो सॉफ्टवेयर तो जितनी अच्छी रैम होगी आपको कहते हैं कि उतना अच्छा आपका प्रोसेसिंग होगी. ठीक है. प्रोसेसिंग क्या मतलब, आप सिंपल आप एक सॉफ्टवेयर पे काम करें तो रैम का रोल उतना नहीं रहता है. ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो रैम विल वर्क. ठीक है. आप सिंपल काम कर रहे हो वो तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, पता भी नहीं चलता है कि आपकी रैम काम कर कितना हैवी लोड है. लेकिन आप सपोज दैट 10-20 सॉफ्टवेयर एक साथ आपने ओपन कर रखे हैं तो एट दैट टाइम आपको पता चलता है रैम रिक्वायर्स टू इंक्रीज. ठीक है. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी often known as RAM provides space for your computer temporary store data that is a current use the CPU and can quickly access and read information. ठीक है. तो बहुत जल्दी अगर हमें एक्सेस चाहिए, 2 चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं. एक कैश होती है. ठीक है. कैश इज़ लाइक अ पाइप, आप समझ सकते हो. ठीक है, इज़ लाइक अ पाइप. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है. जैसे हमारा यहाँ से हमारा एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से डेटा जाएगा CPU के लिए, तो कैश वर्क करेगी. तो कैश काम कब करेगी, जितनी अच्छी कैश होती है. वैसे तो नॉर्मली अब आज के टाइम में 5-6 MB तक कैश आ गई है. ठीक है, और ये बहुत होती है. ठीक है, पहले तो 2-2, 4-4 KBs में आती थी, लेकिन अब i7 प्रोसेसर्स वगैरह मल्टीपल कोर्स आ गई हैं तो इनमें कैश मेमोरी बढ़ा दी है. बाय दैट प्रोसेसिंग बहुत आसान हो गई है. ठीक है. तो रैम क्या काम करती है? रैम व्हेन यू विल एग्जीक्यूट any application at that time RAM will work. ठीक है. when you will save the information it will goes to permanent memory. ठीक है, permanent memory में चली जाती है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो ये सेमी कंडक्टर मेमोरी, इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है. वोलेटाइल मतलब कि it will work only when electricity will be there in the when your system are working. ठीक है, means connected with the power. ठीक है. when the system is disconnected from the power it will stop working. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि डेटा लॉस्ट केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ. ठीक है, डेटा लॉस हो जाएगा. इट इज़ अ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी में अब तो सेकेंडरी मेमोरी भी फास्टर हो गई हैं. रीज़न बिहाइंड जब से SSD आ गई है. ठीक है, SSD हार्ड डिस्क जब से आ गई हैं तो
सेकेंडरी मेमोरी की भी बहुत 9-10 टाइम्स फास्टर हो गई हैं। डेटा ट्रांसफरिंग बहुत फास्ट हो गया है, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आपने देखा हो, मदर सिस्टम ऐसा देखा होगा, रैम्स ऐसी देखी होंगी, मदरबोर्ड पे आपने ऐसे चिप्स देखे होंगे, तो उनको हम रैम बोलते हैं, ठीक है, रोम बोलते हैं, सॉरी। रीड ओनली मेमोरी, वट एवर इन द मेमोरी दैट विल रीड, ठीक है। अगर हम देखें तो रोम क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर विच होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू चेक बेसिक हार्डवेयर। सबसे पहले जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो रोम क्या काम करती है? जो बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं या नहीं, एंड टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती है मेन मेमोरी में, रैम पे, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली, ठीक है। ऐसी मेमोरी में जो रोम में कह सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट लॉस्ट आफ्टर द सिस्टम शट्स डाउन, जब सिस्टम शट डाउन होता है तो ये लॉस नहीं होता है, ठीक है, इट विल नॉट लॉस, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कैश मेमोरी, जो भी मैंने बताया था। कैश इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी area that helps a computer or peripheral to process information. This is a very high speed semiconductor memory which can speed up CPU. CPU को speed up करने के लिए कैश मेमोरी का यूज होता है। It acts as a buffer between the CPU and main memory. मेन मेमोरी और CPU के बीच में बफर होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये हमारी मेन मेमोरी है, ये CPU है, और ये कैश लगी हुई है, ठीक है, ठीक है। A buffer is a data area shared by the hardware devices or program process that operate at a different speed or the different sets of priorities, ठीक है। तो different set of priorities मतलब कि जितना आप जो फ्लो ऑफ डेटा होता है दैट विल बी, आपने देखा होगा कि जब आप व्हेन यू विल एग्जीक्यूट समथिंग, तो कुछ थोड़ी देर मूवमेंट होता है कि इस टाइप का कैसा मूव करता रहता है, ऐसा करके सिस्टम अलग अलग डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या काम, इनका पर्पज़ ही यही होता है कि ये बफर, दिस टर्म इज कॉल्ड अ बफर, ठीक है। जैसे आपका व्हेन यू विल लोड यूट्यूब, तो यूट्यूब में ऐसे होने लगता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ बफरिंग, मीन्स लोडिंग ऑफ द फाइल्स इज नोन एज अ बफरिंग। एक और होता है बूटिंग, एक टर्म और होता है बूटिंग, ठीक है। बूटिंग इज द प्रोसेस जब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स जो होती हैं वो मेन मेमोरी में लोड होती हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बूटिंग। अगर हम और इजीली समझें तो द स्टार्टअप ऑफ आफ्टर स्विचिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, टिल द डेस्कटॉप फर्स्ट स्क्रीन विल अपीयर, इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। टू स्विच ऑन द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ बूटिंग, ठीक है। हम यूनिट्स ऑफ अ मेमोरी की बात करते हैं। एलिमेंट्री यूनिट ऑफ अ मेमोरी इज अ बिट, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मेमोरी इज अ बिट, ओके। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड अ निबल, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, ठीक है। एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, ठीक है। और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बाइट, सॉरी बिट, ठीक है। 1 बाइट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर एन 1 कैरेक्टर। तो जो बाइट स्पेस है एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बाइट ये होता है। 1 बिट जैसे हम कह सकते हैं कि 0 और 1, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। लगभग अगर हम 65 या A स्टोर करते हैं तो हमें इसमें 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी, नॉट अ बिट, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 कन्वर्ट, 0 A is a normal assembly code, ठीक है, you can say it is assembly code, ठीक है, not a मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो पहले तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने बताया था 65, एंड देन इसको
1001 में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, देन इट विल बी इक्वल टू 8 बिट। वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट। तो ये दो मेन यूनिट्स होती हैं, बट निबल में हम लोग कभी काउंट नहीं करते, ना बिट में काउंट करते हैं, हम लोग बाइट में ही काउंट करते हैं। बेसिक जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, बेसिक मानते हैं। बिट में अब कुछ भी काउंट नहीं होता है, ठीक है, बाइट में ही काउंट होता है। देन KB, मेग, MB, GB, TB, पैट, PB, ठीक है, EB, ZB, YB, ठीक है, योटा बाइट। और सभी में लगभग 1024 और यू कैन से 2 to the power 10, ठीक है, ये इक्वल दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1024, ठीक है। तो 10 to the power 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट विल इक्वल टू 1 KB इज इक्वल टू 2 to the power 10 बाइट, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे TB यूज़ कर रहे हैं, 4 TB 5 TB तक, 8 TB 10 TB तक हार्ड डिस्क आ गई हैं, ठीक है। और मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है, वैसे तो इससे ज़्यादा भी अवेलेबल है, बट नॉर्मली मिलती नहीं है, ठीक है। 10 TB तक आपको इजीली मिल जाएंगी इफ़ यू कैन सर्च, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट अ सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory, it is the external memory of a computer. It is also called auxiliary memory or device memory, ठीक है। It is computer memory, ठीक है, नॉन वोलेटाइल होती है। करंट नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंटली पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। persistent in nature and not directly accessed by a computer processor. कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली असेस नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें रैम रोम की रिक्वायरमेंट होती है। इट विल रीड, इट अलाउज यूजर टू स्टोर डेटा, मे बी इंस्टेंटली, इजिली रिट्रीव, ट्रांसपोर्टेड एंड यूज एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज, ठीक है। इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्टोरेज सच एज रीड मेमोरी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑल परमानेंट और persistent storage devices such as ROM, लाइक फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स, अब तो ये ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, टेप्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेट स्टोरेज। अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टार्टअप एंड फास्ट डिवाइस SSD, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई है, ठीक है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, पहले तो चीज़ है ना। थोड़ी सी अभी कॉस्टली आ रही है, इन फ्यूचर इट विल रिड्यूस, प्राइस विल रिड्यूस जैसे जैसे इसका यूसेज बढ़ जाएगा। वैसे इट इज़ स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी बट कैन स्टोर एंड रिटेन डेटा, ठीक है, इवन ऑफ द कंप्यूटर इज़ नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर से भी कनेक्टेड नहीं है, तो भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। सेकेंडरी मेमोरी इज नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है? फॉर परमानेंस, ठीक है, दे डू नॉट लूज डेटा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ कर दोगे तो इनसे डेटा लॉस नहीं होता। पोर्टेबिलिटी के लिए सेकेंडरी स्टोरेज लाइक सीडीज, फ्लैश ड्राइव कैन यूज टू ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, लाइक मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये 3 टाइप की आती हैं डिवाइसेस, है ना। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो एबाकस सबसे पहला कह सकते हो, इट इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, 3000 साल पहले आई थी, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, अर्थमेटिक। फिर नेफियर्स लॉग्स बोन्स, द आइडिया ऑफ लॉगरिथम बेस पे आया था। जॉन नेफियर ने बनाया इसको इन 1617, ठीक है, नोन एज नेफियर्स बोन मशीन इसे बोलते थे हम लोग, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का काम करती थी। दीज वर नंबर्ड रॉड्स, ठीक है, नंबर्ड रॉड्स इस तरीके से देखो ये बनी हुई हैं, स्लैशेस, विच कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय ए नंबर इन रेंज 2 से ना मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब प्रोसेस तो मुझे भी नहीं मालूम बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस, ठीक है, बट हाँ, अगर हम बात करें कि एक आसान चीज़ नहीं थी धीरे धीरे करके डेवलप यहाँ तक पहुँचना, ठीक है। मल्टीपल मशीन्स बनी, मल्टीपल चीज़ें बनी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने
कुछ ना कुछ क्रिएट किया. आई थिंक देन विल हियर टू इन द एरा ऑफ AI. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पास्कल ने मशीन बनाई. ब्लेज पास्कल ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. इन्वेंटेड एन एडिंग मशीन इन 1642 that was made up of gears, was used for adding numbers quickly. This machine was also called Pascaline and was capable of addition, subtraction along with carry transfer capability. It worked on clock. ठीक है, clock पे काम करती थी. ठीक है. Then Lebanese calculator 1673, Gottfried Leibniz नाम था इनका. जर्मन मैथमेटिशियन थे. एक्सटेंडेड द कैपेबिलिटी ऑफ एडिंग मशीन इन्वेंटेड बाय पास्कल. ठीक है, जो पास्कल ने इन्वेंट किया था उसको इन्होंने थोड़ा सा और ऐड ऑन किया उसमें. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एज वेल. द मल्टीप्लिकेशन वाज डन थ्रू रिपीटेड एडिशन. ठीक है, एडिशन के थ्रू कर, मतलब वहाँ पे क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली होता था. यहाँ पे रिपीटेड एडिशन लाइक 2 + 2 + 2 ऐसे करके करते होंगे. नंबर्स यूजिंग अ स्टेप्ड सिलेंडर each with 9 teeth of varying length. ठीक है. फिर उसके बाद जैक्वार्ड लूम. in order to make the cotton weaving process atomic, जोसेफ जैक्वार्ड devised punch card. ठीक है, जैसे पंच कार्ड ने बनाया, जैसे कॉटन वीविंग जो मशीन होती है वैसी थी. यूज देम टू कंट्रोल लूम्स इन 1801. ठीक है. The entire operation was under the program's control. Through this historic invention, the concept of storing and retrieving information. ये पहला इन्वेंशन ऐसा था जिसमें स्टोरिंग और रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन के बेस था. इसके बाद हम लोग थोड़ा और लंबी जहाँ छलांग लगाते हैं. Mark 1 in 1944, Prof. Howard Aiken in collaboration with IBM constructed an electromechanical computer named Mark 1, which could multiply two 10 digits number in 5 seconds. ये सबसे फास्ट उस समय का था सिस्टम. This machine was based on concept of Babbage electrical engine, was first operational general purpose computer. ठीक है, ये बाबेज ने 2 मशीनें बनाई थी. That is, I think you know, one is analytical engine and second one is mechanical computer. ठीक है, इसे हम बोलते थे डिफरेंशियल इंजन. ठीक है, इन्हें हम दो मशीन्स इन्होंने बनाई थी, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंशियल इंजन. ठीक है, इन्हीं पे बेस थी ये मार्क 1. ठीक है. अब अगर हम जनरेशन्स की बात करें, फर्स्ट जनरेशन 1940 to 56. ठीक है, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे. ठीक है, और इनके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इनियक, इडवैक, इडसैक, यूनियक. ठीक है, ये कंप्यूटर्स नेम थे. ठीक है, अगर हम इनको या गेस करेंगे कितने बड़े होते होंगे तो आई थिंक बताते हैं कि इनके जो वायर्स थे वो 70 किलोमीटर्स तक जाते थे अगर हम उनको एक्सटेंड करें दें. ठीक है, एंड 20 टन अप्रॉक्स इनका वेट होता था. इसका वेट था जो फर्स्ट सिस्टम था उसका. ठीक है, साइलेंट फीचर अगर हम बात करें तो यूज वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे. यूज कंप्यूटर्स से ऑक्यूपाइड लॉट ऑफ स्पेस, हाई इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एंड हाई हीट जनरेशन. वर अनरिलायबल सिंस दे आर प्रोन फ्रिक्वेंट हार्डवेयर फेलियर्स. ठीक है, बहुत जल्दी हार्डवेयर ख़राब हो जाता था. इनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, इसलिए इनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, बहुत मुश्किल होता था. दे वर वेरी कॉस्टली और रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस. कॉन्टीन्यूस एयर कंडीशनिंग. ठीक है, हर समय एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती थी क्योंकि हीट अप हो जाते थे. प्रोग्रामिंग वाज डन इन मशीन लैंग्वेज. इसमें प्रोग्रामिंग जो होती थी मशीन लैंग्वेज होती थी. ठीक है, ऑल्दो असेंबल लैंग्वेज ऑल्सो स्टार्टेड एट द एंड ऑफ जनरेशन ऑफ एग्जाम. एंड जनरेशन के एंड में इनका यूज़ होने लगा था जो प्रोग्रामिंग थी असेंबली लैंग्वेज का. सेकेंड जनरेशन की बात करें देन विल डिस्कस इन 1956 to 63. सेकेंड जनरेशन की में आए थे रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स को. ट्रांजिस्टर्स इसमें
इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सो ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स एज आर द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ देन वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव होते थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपली आप अगर देखोगे तो सिंपल कह सकते हैं कि दे आर डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि मैक्सिमम चीज़ें इंक्रीज होती गई और डिवाइसेस जो हुई कॉम्पैक्ट होती गई। मैग्नेटिक कोर मेमोरीज थी, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, वाइडर कमर्शियल यूज बट कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफ़िकल्ट, अब भी डिफ़िकल्ट था। कांस्टेंट एयर कंडीशनिंग अब भी रिक्वायरमेंट थी। IBM 1401, IBM 1620, यूनिएक, ये सारी चीज़ें, ये सिस्टम्स बनाए गए थे उस टाइम पे। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से 71 तक इसमें MSI का यूज़ होने लगा था, ठीक है, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे थे, ठीक है, और मल्टीपल सर्किट्स यूज़ होने लगे थे, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें डिक्रीज़ हो गई थी, है ना। तो 10 ट्रांजिस्टर्स पर चिप लगने लगे थे। थिंक अबाउट इट कि अगर जहाँ 1 ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, यहाँ पे 10 ट्रांजिस्टर्स होने लगे थे। फिर उसके बाद MSI चिप्स यूज़ होने लगी, उसमें 100 ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे। कंप्यूटर्स वेरी स्मॉलर, छोटे होने लगे, फास्टर होने लगे, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्किट्स और उन पर वर्कआउट होने लगा, चीज़ें डिक्रीज़ होने लगी, उनके साइज़ कॉम्पैक्ट होना, लो पावर कंजम्पशन होने लगा, ठीक है। लेकिन हीट तब भी होते थे। आज भी हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर्स अगर बहुत ज़्यादा सिस्टम्स के एक जगह रखे हुए हैं तो यूज़ ऐसी। फोर्थ जनरेशन 1972 टू प्रेजेंट। वैसे तो अब 1972 टू अगर हम 72 से बात करें तो 2000 तक बोली जाती है। फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है अगर बात करें तो। अब हम लोग VLSI टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे 1972 में, 2000 तक करते रहे। अब तो हम लोग AI पे काम करें, तो मैं तो कहूँगा कि द जनरेशन इज़ नाउ इट इज़ द फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। बहुत कुछ वी आर रिकॉर्डिंग व्हाट द पर्सन पीपल आर डूइंग, व्हाट एवरीथिंग इज गोइंग रिकॉर्डेड। बिट्टू शांत रहो, ठीक है। तो नेटवर्किंग होने लगी, डेटा कम्युनिकेशन होने लगा, ठीक है। आज इस जनरेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, वेरी रिलायबल, पावरफुल एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है, नेग्लिजिबल पावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन बताया ही मैंने, सुपर कंडक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेन यही है कि AI पे काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी यू कैन से, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, मॉलिक्यूलर पे काम हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी, अगर आप मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में भी इस चीज़ का थॉट प्रोसेस बदल गई है। तो मूवीज़ में अगर हम सोच रहे हैं तो आप अगर देखोगे तो मूवीज़ का ही कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होती है इन फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो जो भी हम मूवीज़ में देखते हैं, जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज मूवीज़ होती हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो हाँ, ऐसा हो सकता होगा, इन फ्यूचर में हो सकता है हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ट्रैवल करें, ठीक है, लाइट ईयर्स में ट्रैवल करें, ठीक है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट हाँ, नाउअडेज वी कैन वर्किंग ऑन इट, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं। कल हम लोग डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल पे बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा जनरेशन पार्ट खत्म होगा, कल ये तुम्हारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़, कल नहीं मीन्स परसों, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सर। तो पढ़ो और पाइथन भी स्टार्टअप करो, ठीक है। पाइथन भी साथ में पढ़ते रहना, जो न्यूमेरिक्स में MCQs दिए हैं वो पढ़ते रहना, क्योंकि दे विल वर्क इन क्लास 12th, ठीक है। सब रिक्वायरमेंट होती है क्लास 12th में इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये भी यही बेसिक है और वहाँ भी यही होगा। आपको मैंने उस दिन मैच कराया था सिलेबस, एक ही इस टॉपिक के अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पाइथन भी और SQL भी, और दोनों ही मेन टॉपिक हैं, ठीक है।
तो जितेंद्र, have you started study? Shoaib and Jitendra. Yes, sir. Okay. I think both of you have got the notes. Yes, sir. Okay, Jitendra, you also. हमारे काम इधर हो जाता है. Yes. Okay. Okay. Then take care. Bye. See you tomorrow. Thank you, sir. Means next turn. Thank you, sir. Okay. Yeah.